مسیح یسوع کے خوبصورت ترین نام میں، جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنے جلال کے لیے، اپنی انجیل کی خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کیا، اور اپنے اس ادنا سے خادم کو، جو ایک مٹی کے برتن کی مانند ہے، جس میں کوئی چیز سما نہیں سکتی، تو بھی وہ اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے، حشمت کے لیے خرچ اور استعمال کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے جسمانی اور روحانی برکات مانگتا ہوں خداوند سے، اور خداوند سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو پاک کلام کی قربت عطا کرے، اپنی نزدیکی عطا کرے، آپ کو اپنے قد کے اندازہ تک پہنچائے، آپ کو روحانی بالیدگی، سرفرازی اور کامرانی عطا کرے، تاکہ ہم ہر روز اس کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں اور ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آج عزیزو، میں آپ کی خدمت میں ایک نئے اور بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسپرچول ہیروز جو ہیں ہمارے، ان کا مقابلہ ہے سو کالڈ پاسٹرز کے ساتھ، بشپس کے ساتھ، جن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے یا میری قوم کے جو اصل ہیرو ہیں، اور کچھ ایسے نام نہاد لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو پادری اور اپنے آپ کو بشپ کہتے ہیں، وہ ان میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں جو میں آج آپ سے کرنے والا ہوں، انتہائی دکھ کی حالت میں، انتہائی افسوس اور اپنی 16 سالہ خدمت کے تجربات اور مشاہدات کے بعد، بہت ساری دعاؤں کے بعد، خداوند کے پاک روح نے یہ میرے دل میں بات ڈالی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور وہ باتیں جو آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیے ملاکی پہلے باب کی 6 آیت، تو آپ کو میرا مضمون سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آج کا مضمون انتہائی اہم ہے، اس لیے آپ کی مجھے توجہ چاہیے۔ ملاکی پہلے باب کی 6 آیت میں خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں لکھا ہے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس پاک کلام کی باتوں کی طرف آؤں، پہلے میں اپنے اصل ہیروز کی طرف جانا چاہتا ہوں، جو بائبل مقدس کے ہیرو ہیں، جو میرے ہیروز ہیں، جو میری قوم کے ہیروز ہیں۔ میں ان کا ذکر پہلے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ موسیٰ ہمیں نظر آتا ہے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں جب ہم ایک آیت دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں اس خدا کے خادم کی بابت کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں 11ویں باب کی 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ اجر پانے پر تھی۔ عزیزوں، یہ بزرگ موسیٰ، اس کے پاس موقع تھا بادشاہ کی بیٹی کا بیٹا کہلانا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانا، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے مرتبہ کی بات ہے۔ پورا سسٹم اس کے انڈر میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے ان روپیوں پیسوں کو، اس دولت کو مسیح یسوع کی محبت کے آگے قربان کر دیا۔
आगे हम देखते हैं बुजुर्ग एलिया है, बुजुर्ग एलीशा है, बुजुर्ग यसाया है, बुजुर्ग यर्मिया नबी है, दानिएल नबी है, सदरक मेसक अब्दुल्नजू है। नए आदनामे में जब आप आते हैं बुजुर्ग पतरस है, बुजुर्ग यूहन्ना है और बुजुर्ग इंद्रियास है और बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के ये हीरो हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की मसीह यस्सु के लिए। और जब मैं अपनी कौम की बात करता हूं तो मैं उनका भी जिक्र करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एहसास की बात है, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। अगर हम आज खिदमत को देखें उन हीरोज की, वो जो असल में खुदावंद के बुलाए हुए लोग थे, खुदावंद के बरगजीदा लोग थे, वो जिनकी बुलाहट खुदावंद की तरफ से थी। बुजुर्ग साधु सुंदर सिंह की बात करूंगा, बुजुर्ग बख्श सिंह की बात करूंगा, बुजुर्ग शहबाज डीन की बात करूंगा, जिसने आज ये ज़बूर 150 को पंजाबी में ट्रांसलेट किया। पंजाबी में ट्रांसलेशन करने के बाद उनकी तर्जें बनाई, लय बनाई, म्यूजिक्स बनाया और आज हम खुदावंद की हमदो सताइश करते हैं। और खुदावंद ने अपने बंदा को ऐसे जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया कि जब हम ज़बूर गाते हैं हमारी रूह खुश हो जाती है। और मैं उन खातमीन का भी पाकिस्तान की कलीसियाओं में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये वो लोग हैं और इनके अलावा और बेशुमार खुदावंद के ऐसे सच्चे खादम जिन्होंने पाकिस्तान में कलीसियाओं की बुनियादें रखी, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, मीलों पैदल सफर किया करते, मीलों साइकिलों के ऊपर सफर किया करते, अंजील के पैगाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उन्होंने खुदावंद के पाक कलाम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। रास्ते में पानी हो, घुटनों घुटनों तक पानी है, तो भी वो खुदावंद के पाक कलाम के प्रचार से कभी नहीं रुकते। मैं ऐसे ऐसे खादमों को जानता हूं जो स्ट्राइक होती, हड़ताल होती, कर्फ्यू होता, तो भी वो खुदावंद की अंजील के पैगाम के लिए निकल खड़े होते। मैं ऐसे ऐसे खुदावंद के हीरोज को जानता हूं, ऐसे ऐसे खुदावंद के अजीम सुरमाओं को जानता हूं जो पाकिस्तान के अंदर जहां पर अंजील की मनादी आसान नहीं है दोस्तों, वहां पर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की खुशखबरी के पैगाम को बड़ी दलेरी के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े वलवले के साथ, बड़ी हिकमत के साथ सुना रहे हैं और सुनाते रहे हैं तारीख के अंदर। और आज कलीसिया पाकिस्तान जो है वो आज इस स्टेज तक पहुंची है उनकी कुर्बानियों की वजह से। ऐसे ऐसे खुदा के सुरमाओं को जानता हूं जो गलियों में, कूचों में, बाजारों में, पब्लिक प्लेस पर जाकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस अंजील जो है वो गैर अक़वाम के अंदर तकसीम करते, बाइबल मुकद्दस का लिटरेचर जो है वो गैर अक़वाम तक लेकर जाते, खुदावंद के अंजील की खुशखबरी को दूसरी कौमों तक लेकर जाते, क्योंकि उनके अंदर रूहों का दर्द था, उन्हें कलीसियाओं की फिक्र थी, उन्हें खुदावंद का हुक्म जो है वो चैन नहीं करने देता था। क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं मत्ती 28 बाब में इरशाद आज़म के बारे में लिखा है और खुदावंद ने अपने पाक और मुकद्दस कलाम में क्या फरमाया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और आज ये बातें मैंने जो अभी की हैं, ये बाइबल मुकद्दस के ये मेरे हीरोज हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के असल सूरमा है जिनकी बुलाहट खुदावंद की तरफ से थी, किसी इंसान की तरफ से नहीं, जिनको खुदावंद ने चुना। और आज आप उन्हें बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़े बड़े क्रूसेड में नहीं देखेंगे, आप उन्हें टेलीविजन में नहीं देखेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं दुआया कमरों में, आप उन्हें देख सकते हैं घुटनों के बल खुदावंद के पास, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से, उनकी अनथक मेहनतों की वजह से पाकिस्तान में कलीसिया जो है वो सरखरू हुई। और हम भी उन्हीं में से फल हैं, उन्हीं का फल है हम भी।
और आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की खिदमत करते हैं। मसीह यीशु ने इरशाद आज़म के लिए बताया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। और आज जो नाम निहार पादरी हैं, जो नाम निहार बिशप हैं, मैं ये बातें इंतहाई अफसोस के साथ कर रहा हूं। बड़ी दर्द है मेरे दिल में। और मैं भी आज तक दूसरे पास्टर्स की तरह, खुदा के खादमों की तरह यही कहता था, नहीं हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए। लेकिन अजीजों, मुझे दुख है इस बात का कि मसीह यीशु ने कहा कि जाओ और शागिर्द बनाओ। और आज का खादम क्या कर रहा है? आज का पादरी क्या कर रहा है? जिसे खुदावंद ने नहीं बुलाया और वो खुदावंद की तरफ से उनकी ना तो बुलाहट है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने नाम के आगे पादरी का लफ्ज लगाया है, इसलिए मैं सो कॉल्ड पादरी कहता हूं। मैं ऐसे ऐसे बिशप्स को जानता हूं जिनके पास कोई कलीसिया नहीं है, जिनके पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है, जिनके पास कोई खानदान नहीं है, और उनके नामों के आगे आप बिशप जैसे लफ्ज देखेंगे, उनके नामों के आगे आप पादरी जैसे मुकद्दस लफ्ज देखेंगे। और यही वजह है कि आज मेरी कौम के अंदर लफ्ज पादरी का मयार बहुत गिर चुका है, क्योंकि मैं खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की दर्द रखते हुए ये बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूं। क्योंकि वो लोग जिनको खुदावंद ने नहीं चुना और अपने आप को पादरी कहते हैं, उन्होंने ना तो कहीं से सेमिनरी की है, उन्होंने ना तो कहीं से बाइबल की बाकायदा तालीमें हासिल की हैं। और सेमिनरी क्यों नहीं की? ये बड़ी एक खास बात है, क्योंकि जब आप सेमिनरी के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट आपको इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। और आज जो सो कॉल्ड पादरी हैं, जो अपने आप को खादम कहते हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो अनपढ़ लोगों की है। और जब आप उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि मसीह यीशु के शागिर्द भी तो अनपढ़ थे, मसीह यीशु के शागिर्दों ने कौन सी सेमिनरी की थी। तो मैं आज ऐसे लोगों को, ऐसे खादमों को ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा के लोगों, अपना किबला दुरुस्त करो। आप अपना कंपैरिजन उन रसूलों के साथ कर रहे हैं, उन शागिर्दों के साथ कर रहे हैं जिनके पांव की हम खाक भी नहीं है, जिन्होंने इंजील की मनादी के लिए, खुशखबरी के पैगाम के लिए, मसीह की मोहब्बत के लिए लान तान सहा, जिन्होंने अपने घर बार, बीवी, बच्चे, हर चीज, अपना बिजनेस, अपना कारोबार एट अ सेकंड, विद इन अ मिनट हर चीज छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं। आप अपनी खिदमत को देखें, उनकी खिदमत को देखें, हम उनके पांव की खाक भी नहीं है। और अगर ये भी आपने देखना है तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने कौन सी सेमिनरी की थी। उन्होंने 3.5 साल चलते फिरते बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, मेरे आका और रूहुल कुद्स से मामूर शख्सियत के साथ गुजारे। उन्होंने थ्योरी नहीं की, उन्होंने 3.5 साल प्रैक्टिकली अपनी आंखों से ये सारी बातें देखी, सीखी, सुनी। और यही बात है कि उनके दिलों में से ये खुशखबरी का पैगाम निकलता। और फिर वो कहते कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि उनकी बुलाहट खुदावंद की तरफ से थी। और आज जो अपने आप को खादम कहते हैं, ना तो उन्हें बाइबल के डॉक्ट्रिन का पता है, ना उन्हें बाइबल की थियोलॉजी का पता है, ना उन्हें पास्टर के मतलब का पता है। ये मैं नहायत अफसोस के साथ ये बातें कह रहा हूं। और यही वजह है कि जब वो बाकायदा तौर पर तालीम हासिल नहीं करते, मैं और आप देखें, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखें, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में मत्ती 7 बाब की 15 आयत में लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो खुदावंद हमें आगाह करता
होता है। और आज का पादरी कर क्या रहा है? मसीह यीशु ने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और आज का पादरी जो है वो क्या कर रहा है? वो दूसरी कलीसिया की भेड़ों को चोरी करके अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से, अपनी माकारी से और अपने गल्ला में शामिल कर रहा है, और वो समझ रहा है कि मैं खिदमत कर रहा हूं। खुदावंद ने शागिर्द बनाने के लिए कहा है, ढूंढने के लिए नहीं कहा, चोरी करने के लिए नहीं कहा। और आज आप देखें जगह जगह, मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बातें कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर देखें जगह जगह आपको जो है वो शिफाया क्रूसेड नजर आएंगे। जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं, शिफाया सेमिनार, शिफाया कन्वेंशन, शिफाया क्रूसेड हो रहे हैं। लगता है कि सारी की सारी कौम जो है वो बीमार पड़ी हुई है, क्योंकि आज का खादम जो है वो उन्हें असल तालीम बाइबल की नहीं दे रहा। वो उन्हें इन बीमारियों से आजाद करता है, बीमारियां फिर उनके अंदर दाखिल हो जाती हैं। दूसरा क्रूसेड होता है, वही बीमारियां लेकर वापस पहुंचे होते हैं, क्योंकि आज का खादम उन्हें अंजील की मनादी नहीं कर रहा, उन्हें पाक कलाम की खुशखबरी का पैगाम नहीं पहुंचा रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस पैगाम के अंदर तौबा नहीं है, तौबा का पैगाम नहीं है, जिस पैगाम के अंदर यीशु मसीह के कफारा की तबलीग नहीं है, वो पैगाम बेईमानी और मकसद है। जिस पैगाम के अंदर यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, आप शिफाएं बांटते फिर रहे हैं। यीशु ने मुझे और आपको शिफा देने के लिए नहीं चुना, यीशु ने मुझे और आपको इसलिए चुना है ताकि हम उनके गुनाहों की बीमारी से उन्हें आजाद करें, उनको शाफी के पास लेकर आए। और आज का खादम ये काम नहीं कर रहा। आप उन्हें शाफी का बताएं। जब शाफी उनकी जिंदगी में आ जाएगा, यीशु उनकी जिंदगी में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद बीमारी उनके बदनों में ठहर नहीं सकती। सारी की सारी कौम जो है वो शिफा लेने के लिए पहुंच रही है। और मुझे इंतहाई अफसोस होता है जब आप इश्तिहारात देखें, क्रूसेड के, सेमिनार के, कन्वेंशन के, किसी भी इश्तिहार को उठाकर देखें। हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं ये मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर कर रहा हूं। किसी भी इश्तिहार को उठाकर आप देखें, उसके ऊपर आपको लोगों की तस्वीरें नजर आएंगी, बड़े बड़े नाम नजर आएंगे, बड़े बड़े टाइटल नजर आएंगे, लेकिन उस इश्तिहार के ऊपर ना तो तौबा का पैगाम होगा, ना यीशु की खुशखबरी का पैगाम होगा, ना मसीह यीशु के निजात और कफारा का जिक्र होगा। और इतने बड़े बड़े इश्तिहार हम अपनी तस्वीरों से भरकर पूरे शहरों में बांटते फिर रहे हैं। क्या हम खिदमत कर रहे हैं? और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी वजह से कहा कि ये भेड़िए जो हैं ये भेड़ के भेष में आने वाले हैं। और जब मैं अपनी कौम को देखता हूं तो मेरी आंख आंसुओं से रोती है। उनकी मासूमियत को, उनकी सादगी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंतहाई अफसोस होता है, क्योंकि वो मुझे उन भेड़ों की मानिंद लगते हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। क्योंकि आज का पासबान जो अपने आप को खादम कहता है, उसे कलीसिया का दुख नहीं है, कलीसिया की तकलीफ नहीं है, रूहों का दर्द उसकी जिंदगी के अंदर नहीं है। आज का पादरी जो है वो क्या कर रहा है? जो अपने आप को पादरी कहता है, अपने नाम के सामने बड़े बड़े टाइटल, डॉक्टर, रेवरेंड, पास्टर और पता नहीं क्या क्या हम लगाकर घूम रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम की खुशखबरी हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। और आज का पादरी किन घरों में विजिट करने के लिए जाता है? जो कि ज्यादा हदिया देते हैं, जो कि शुक्रगुजारी ज्यादा देते हैं, जो कि अच्छा खाना खिलाते हैं, उनके घरों में पादरी भी जाना पसंद करते हैं। कलीसिया का दूसरा खानदान जो हदिया नहीं दे सकता, जो शुक्रगुजारी नहीं दे सकता, जो अच्छा खाना उनके लिए नहीं पका सकता, अगर वो बीमार भी पड़ा है, अगर वो तकलीफ में भी है, अगर वो किसी मुश्किल में भी है, तो पादरी उनके घर पे नहीं जा रहा। ये प्रैक्टिकली बातें हैं। आप अपनी जिंदगी में गौर करें, देखें कि आज का खादम क्या कर रहा है। और मेरी अपने इन सो कॉल्ड पादरियों से भी यही इल्तिजा है कि अपना किबला दुरुस्त करे,
ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکیں، اس کی خدمت کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہمارا سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ وہی ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام مجھے اور آپ کو فرماتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، کسی انسان کی طرف اپنے نگاہ نہیں کرنی، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں اسے اپنا ہیرو بنانا ہے۔ آج ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آج لوگوں کی طرف میں دیکھتا ہوں، کلیسیاؤں کی طرف دیکھتا ہوں، وہ پاسٹر بہت اچھا ہے، اسے خدا نے یہ خدمت دی ہے، وہ پاسٹر بہت اچھا ہے، یہ پاسٹر بہت اچھا ہے۔ تو مجھے بائبل مقدس کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اس وقت بھی کلیسیا یہ کہتی تھی میں پالوس کا ہوں، میں اپالوس کا ہوں۔ تو مقدس پالوس رسول نے ان سے کیا فرمایا کہ کیا پالوس تمہارے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے؟ کیا اپالوس تمہارے لیے صلیب پر چڑھا ہے؟ نہیں۔ خادم کی کیا حیثیت ہے؟ خادم تو، پاسٹر تو خدا کے جو عظیم خادمین ہیں وہ تو مسیح یسوع کے ہتھیار ہیں۔ خداوند کے ہاتھ میں ہم ایک ہتھیار کی مانند ہیں، وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور آج کا پادری جو ہے، جو اپنے آپ کو پادری کہتا ہے، بڑی شان و شوکت سے بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنا پسند کرتے ہیں، ریڈ کارپیٹ کے بغیر انہیں چلنا پسند نہیں ہے۔ انہیں ان کے گلوں میں روپیوں پیسوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، اور پادری خاموش ہے۔ وہ عزت، وہ تعظیم جو میرے یسوع کو ملنی چاہیے وہ آج پادری کو دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور پادری اس بات پر خاموش ہے کیونکہ اسے اس کی عزت کو تسکین مل رہی ہے۔ عزیزو، آج دیکھیں، آج یسوع کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، انجیل کی خوشخبری کے پیغام کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آج اس خوشخبری کے پیغام کو جس کے لیے اس نے ہمیں دیانتدار سمجھتے ہوئے چنا، آج ہم اسے لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ اور آج میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آج ہم اپنے قبلوں کو درست کریں اور انسانوں کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے وہ سیکٹری کے پاس جانا پڑے گا، کوآرڈینیٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ کوآرڈینیٹر سے آپ بات کریں گے، وہ ایک لمبی فہرست آپ کو دے گا، جی یہ خدا کا خادم آپ کے پروگرام میں ان شرائط کی بنیاد پر آ سکتا ہے۔ اگر آپ انہیں بائی ایئر ریٹن ٹکٹ دیں گے تو وہ آپ کے اس پروگرام میں آ سکتا ہے۔ آپ انہیں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اکوموڈیشن دیں گے تو وہ آ کر انجیل کی خدمت کر سکتا ہے۔ آپ ان کو واپسی پر لاکھوں روپے ہدیہ دیں گے تو پھر وہ آ کر انجیل کی خدمت کر سکتا ہے۔ کیا یہ خداوند نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے؟ مسیح یسوع نے تو مجھے اور آپ سے یہ کہا کہ جب تم خدمت کے لیے نکلو تو نہ بٹوا لینا نہ جھولی لینا، کیونکہ جس کی خدمت کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ اس کا کام ہے ہر چیز کو مہیا کرنا، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ گوروں کی طرف اٹھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری نگاہیں گوروں کی طرف ہیں۔ اور بہت سارے لوگ غلطی سے میری بھی جو ہے وہ پروفائل پک کو دیکھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی فارنر ہے، اور مجھ سے یقین کریں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہماری نگاہیں یسوع کے بجائے گوروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ آج بھی یسوع کی ہیکل میں اٹھنے کے بجائے، اس کی حضوری اور معموری میں اٹھنے کے بجائے، اس کے فضل کے تخت کے سامنے اٹھنے کے بجائے آج بھی گوروں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، بزرگ زبور نویس فرماتا ہے، زبور 37 کی 25ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں جوان تھا اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تو ابھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو روٹی کے ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کا خادم سمجھتے ہیں
और रोटी के टुकड़े मांगते हैं, बेबस हो चुके हैं, लोगों से हदिये और चंदे मांग रहे हैं, तो याद रखें कि अपने आप को तोले और वो नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ लें जिस पर लिखा है मिने मिने तकीलो फरसीन, कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। आज हम लोगों की तरफ निगाह करते हैं, लोगों की तरफ देख रहे हैं, लोगों से हदिये लेने की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं, पुराने अहदनामे में 2 सलातीन के 5वें बाब के अंदर आज का पादरी शिफा देने के बदले में बहुत सारे रुपए पैसे लोगों से वसूल कर रहा है, कलाम सुनाने के लिए लाखों रुपए वसूल कर रहा है और एक ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है, जबकि इस अंजील की मनादी के लिए मुझे और आपको दयानतदार समझते हुए खुदावंद ने चुना और हम उससे अच्छी तरह से खिदमत को सरंजाम नहीं दे रहे। मर्द खुदा अलीशा, उसके पास नुमान कोड़ी जो है वो आया अपनी कोड़ की बीमारी लेकर। उसने कहा, बुजुर्ग अलीशा ने कहा कि फलां दरिया के अंदर जाकर 7 गोते मार तो तू शिफा पाएगा। मुख्तसरन बता रहा हूं, जब वो शिफा पा चुका वापिस लौटा, कहने लगा बुजुर्ग अलीशा से, क्या मेरे आका, मैं तेरे लिए 10 कंतार चांदी, 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर आया हूं। मेरी ये खुशी है कि तू इसे कबूल कर। तो बुजुर्ग अलीशा ने क्या जवाब दिया, आप जानते हैं इस बात को? उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम, मैं इन चीजों में से कोई चीज भी तुझसे नहीं लूंगा। ये है खुदा के खादम, खुदा के हीरो, जो पाक और मुकद्दस कलाम को, जिनको मैंने और आपने फोकस करना है, जिनके पास लोग पैसे लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तेरा रुपया पैसा नहीं चाहिए। और बुजुर्ग पतरस ने क्या कहा उस जन्म के लंगड़े से, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक चीज हमारे पास है और वो ये है कि यस्सु के नाम से उठ और चल फिर, वो हम तुझे दिए देते हैं। और आज मैं और आप देखें, उस मर्द खुदा के पास नुमान खुद लेकर आया है तो तोहफे, तवाइफ, कपड़े, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, लेकिन उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम, मैं इनमें से एक चीज भी नहीं लूंगा, तो इन्हें वापस ले जा। और जब वो वापस जा रहा है नुमान कोड़ी, तो जहाजी जो है वो बुजुर्ग अलीशा का नौकर था। उसके दिल में शैतान समा गया यहूदा अस्करियोती की तरह। वो नुमान के पीछे भागता है और पीछे जाकर नुमान से कहता है कि मेरे आका ने कहा है कि तू ऐसा कर, कुछ कपड़े दे दे और कुछ चीजें जो तू लेकर आया है उनमें से मुझे दे दे। उसने कहा, मैं तो तुम्हारे आका के लिए ही लेकर आया था, उन्होंने नहीं दिए, चलो ये तुम ले लो। जब वो जहाजी जो है वो लेकर आया तो बुजुर्ग अलीशा ने कहा, जहाजी तू कहां था? जहाजी ने कहा, मेरे आका मैं तो यहां पर ही था। उसने क्या कहा कि जब तू नुमान से वो चीजें ले रहा था उस वक्त मेरी रूह तेरे साथ नहीं थी? जा, ये कपड़े, ये सोना, ये चांदी, ये सब तूने अपनी मर्जी से लिया है, और एक चीज मैं तुझे अलग से देता हूं कि जा, उसका कोड तुझे हमेशा तक लगा रहे। तो आज मैं और आप अपने हाथ जो हैं वो गोरों की तरफ उठाए हुए हैं, उन गरीब लोगों की तरफ उठाए हुए हैं। तो आज मैं और आप देखें कि इन रुपयों पैसों के साथ कहीं कोड़ भी हम अपने लिए ना खरीद ले। इस खुशखबरी के पैगाम को मुझे और आपको मुफ्त मिला है, ना हम इन्हें पैसों से खरीद सकते हैं और ना हमारी इतनी ताकत और मजाल है कि हम इन्हें पैसों से खरीदे। तो अजीजों, इस खुशखबरी के पैगाम को, इस शिफा की नेमत को, इन मौजज़ात की कुदरत को जो खुदावंद ने आपको अपने जलाल के लिए दिए हैं, अपनी कमाई का जरिया ना बनाएं। इसे खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, इसे रूहों को जीतने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आज खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों से
जलाल पाए। और आज मैं आपको नहाए अदब और एहतराम के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने किबला को दुरुस्त करो, अंजील की खुशखबरी के पैगाम को गैर अक़वाम तक लेकर जाओ, क्योंकि यही मुझे और आपको खुदावंद ने सिखाया है। इसी के लिए मुझे और आपको दयानतदार समझते हुए खुदावंद ने चुना है। और जो अपने आप को खादमीन समझते हैं वो आज सुन लें, वो खुदावंद के अंजील की खिदमत को अच्छी तरह से करें। और अगर आपने सेमिनरी नहीं की तो सेमिनरी वाले के पास आ जाए, उसके कदमों में झुक जाए, उससे कहेंगे खुदावंद मैं जो है इंतहाई कमजोर हूं, कम अकल हूं, लाइल्म हूं, तो मुझे अपने पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से लबरेज कर दे। और यकीनन वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, उसके सामने कोई चीज मुश्किल और दुश्वार नहीं है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।